जोरों से। आप देख रहे हैं बीजापुर समय, मैं आपके साथ खलील कलादगी। कांग्रेस जेडीएस का चुनावी प्रचार शहर बीजापुर के वार्ड नंबर 31 गोड़बोलेमाला एरिया में कल इस बार की लोकसभा चुनाव उम्मीदवार डॉक्टर सुनीता चौहान का चुनावी प्रचार किया गया, जहां डॉक्टर सुनीता चौहान की गुलपोशी भी की गई। इस अवसर पर लोकसभा चुनाव 2019 बीजापुर मतक क्षेत्र से कांग्रेस जेडीएस गठबंधन उम्मीदवार डॉक्टर सुनीता चौहान, केपीसीसी सेक्रेटरी रुखसाना उस्ताद, केपीसीसी माइनॉरिटी सेल के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद रफीक टपाल, कारपोरेटर मोइनुद्दीन बिड़गी, बीजापुर जिला जेडीएस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन एंडीगिरी, अनवर अत्तार, ताजुद्दीन अत्तार के अलावा और भी कई लोग थे मौजूद। हमारे मैत्री सरकार के अभ्यर्थी डॉक्टर सुनीता देवानंद चौहान यहाँ पर तशरीफ ला रहे हैं, जो कि नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। यहाँ पे 2019 का लोकसभा का चुनावी प्रचार चल रहा है और हमारी जो मैत्री सरकार की अभ्यर्थी है डॉक्टर सुनीता देवानंद चौहान, वो आपसे दो बातें करें। ಈ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಾಜಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಪಾಲಿ ಅಣ್ಣಾಜಿ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಸಹೋದರಿ ರುಕ್ಸನಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಮೈನು ಬಿಳಿಗಿ ಅಣ್ಣಾಜಿ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಅನ್ವರ್ ಅಣ್ಣಾಜಿ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಅವರಿವರೇನದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖಂಡ ಅಣ್ಣಾಜಿ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ತಾಯಿಂದಿರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮುದ್ದು ಸಹೋದರ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾಳೆ ಬರುವ 23ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನನ್ನ ಜಯಂತಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತ ಕೂಡ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಕ್ಕಂದಿರೆ ಅಣ್ಣಂದಿರೆ, ತಾವೇನು ಶ್ರಮ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಾನೆಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀನೋ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಬೆವರ ಹನಿ ಒಂದು ಕಣ್ಣೀರಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ರಮ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನಗೆ ಆಗಿದ್ರೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಆ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ದನಿ ಕೂಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಈ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವನ. ನಾವು ಮನೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸೂಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೇಡಂಗಿಲ್ರಿ, ಒಂದು ಸೂಡ ಭಾಜಿ ಕೇಳಂಗಿಲ್ರಿ. ಆದರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಕೂಗಬೇಕಾಗ್ಯದ್ರಿ. ಅದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಾಗಿ ತಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಕೂಗ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಇವಾಗ ಅದು ಪಾರ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ
ಅಷ್ಟೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ರೀ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಗೆ ಗುರುತಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಹಿಳೆಗೆ, ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಸಹೋದರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ, ಆ ಕಾಳಜಿಗೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿರುರುಳಿಯಾಗಿರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ತಾನೇ ಬಂದಂಥ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ JDS ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಡಿಗೇರಿ ಅಣ್ಣಾಜಿಯವರೇ ಈಗ ತಾನೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾವು ನನಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ ರೀ ನನಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮತದಾನ ನೀಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾನು 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ರೀ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. आपने कभी मोदी जी से पूछने की कोशिश की? अच्छा, मिलते ही नहीं बेचारे, वो प्रधानमंत्री हैं तो दिल्ली में रहते हैं हमेशा। तो सिर्फ और सिर्फ वोटों के लिए उन्होंने झूठ बोला। हम सब लोग बेवकूफ बन गए। सबका साथ सबका विकास, इस जुमले का क्या मतलब होता है वो खुद नहीं जानते। इसीलिए हम सब भाइयों को, बहनों को, बुजुर्गों को अलग करने पे लगे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे वो सियासत कर रहे हैं। अभी हमारे जिगजिनी साहब पे आती हूँ मैं। वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में 10 साल से MP हैं, ठीक है। एक बार भी हमारे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के लिए आवाज़ नहीं उठाई उन्होंने पार्लियामेंट में। सोचिए, वो सिर्फ और सिर्फ 5 साल में एक मर्तबा यहाँ पे दिखाई देते हैं। वो भी कैसे वोट मांगते हैं, काका मामा, यही होता है उनका, और कुछ नहीं होता है। ये वोट ले लिया, जाके बैठ गए। फिर उनकी जो क्या कहते हैं मुँह दिखाई जो होगी वो 5 साल के बाद ही होती है। और इन्होंने अपने घर का, जो इनका गांव है, अपने घर तक का रोड नहीं बनाया है। सोचिए, जो इंसान को डेवलपमेंट के नाम पे कुछ पता ही नहीं है, वो इंसान को हम आज तक अपना MP बनाते आए हैं। सोचिए, अगर ऐसे लोगों को हम MP बनाएंगे तो हमारे डिस्ट्रिक्ट की हालत क्या होगी। मैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट की बात कर ही नहीं रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ हमारे डिस्ट्रिक्ट की बात कर रही हूँ। आप लोगों को पता ही है कि क्या हालत है हमारे देश की। और अगर एक एजुकेटेड इंसान को हम लोग बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से MP बनाएंगे तो हमारे क्या क्या फ़ायदे हैं मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। हमारा आर्कियोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हो सकता है, मॉन्यूमेंटल इम्प्रूवमेंट हो सकता है, इंडस्ट्री बन सकती है, हमारे नौजवान भाइयों को यहाँ पे जॉब्स क्रिएट करके दे सकते हैं। और हमारी महिलाओं को, जो कि यहाँ पे स्लम्स में बहुत सारी महिलाएं हैं, सब जानते हैं, लेकिन वो लोग यहाँ पे छोटे मोटे काम करके अपना पेट भर रही हैं, ये सभी जानते हैं। अगर एक एजुकेटेड लेडी आएगी, वो अपना आपका दर्द अपना समझ के आप लोगों के काम करेगी। मैं ये क्यों बोल रही हूँ, आज़ादी के बाद, ठीक है, आज़ादी के बाद पहली बार एक महिला को हमारे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से पार्लियामेंट टिकट दिया गया है और ये हमारा फ़र्ज़ है। और हम सब महिलाएं 49% वोटर्स हैं, 49%। सोचिए, हमारे भाई तो हमारे साथ हैं ही, हमारा बैकबोन बनकर, हमारा बैक सपोर्ट बनकर, और हमारा बस चले तो हम सिर्फ महिलाएं काफ़ी हैं इनको सुलाने के लिए। मैं ये कहना चाहती हूँ आपको कि आप लोग इस बार एक भी वोट वेस्ट मत कीजिए। आप
जितने भी लोग यहाँ पे 100 लोग हैं सपोज, अपना वोट डालिए। अपने साथ एक एक बंदा और एक एक बंदी 5-5 वोट डलवाएंगे। मेरी बात ध्यान से सुनिए, एक बंदा और एक बंदी 5-5 अपने साथ। अगर सपोज आपके घर में 5 लोग हैं तो आपकी जिम्मेदारी 25 वोटों की हो जाएगी। देखिए, आज़ादी से पहले हर कौम के लोग गांधी जी के नेतृत्व में आज़ाद भारत के लिए लड़े थे। क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि हम ये चोरों से लड़े? क्योंकि बापू लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। तो आप लोग इस बार हमारे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से डॉक्टर सुनीता देवानंद चौहान, इनका जो निशान है चारे वाली औरत, ये बात याद रखिए, इस बार हमारा कांग्रेस का निशान नहीं रहेगा, क्योंकि जेडीएस और कांग्रेस से एक ही अभ्यर्थी को चुना गया है। तो इसीलिए इस बार कांग्रेस का निशान नहीं रहेगा। तो आप लोग 3 नंबर बटन पे प्रेस करना। समझ में आया आपको? 3 नंबर बटन पे प्रेस करना है। और जो बुजुर्ग औरतें हैं जो पहले से कांग्रेस को वोट डालती आई हैं, उनको भी समझा के बोलना है, क्योंकि अगर हाथ नहीं दिखेगा तो बेचारी बाहर आ जाएंगी। अगर आप चारे वाली औरत को वोट डालते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कांग्रेस को भी चला जाएगा, क्योंकि हमारी मिलीजुली सरकार है। और खबरों के लिए जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।